کچھ یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کی بنیاد پطرس ہے اور کچھ کہتے ہیں یسوع ہے۔ کلام کو کلام کے نظریے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نظریات کے تبدیل ہونے سے ہم کلام کے مفہوم کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور یہ بہتوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے، بہتوں کے لیے نجات کی قربت کو نہ حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم اسے ہمیشہ اگر اسی طرح جس روح سے یہ لکھوایا گیا اسی طرح اگر ہم اسے لیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اسے سمجھنے میں۔ لوگ کلام کو لے کر اکثر کنفیوز رہتے اور اس کی آیات کو اپنی من مرضی، اپنے ٹیچرز کی ٹیچنگ، اپنے نظریات سے سوچتے ہیں، جبکہ کلام کو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کیا ہے آپ کی خدمت میں، کلام کو کلام کے نظریے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نظریات کے تبدیل ہونے سے ہم کلام کے مفہوم کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور یہ بہتوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے، بہتوں کے لیے نجات کی قربت کو نہ حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم اسے ہمیشہ اگر اسی طرح جس روح سے یہ لکھوایا گیا اسی طرح اگر ہم اسے لیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اسے سمجھنے میں۔ آج میں جو آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنا چاہتا ہوں، کلیسیا کی بنیاد پطرس ہے یا یسوع مسیح۔ بہت سارے لوگ اس بات میں کنفیوز ہیں، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کلیسیا کی بنیاد ہے، اور کچھ کہتے ہیں یسوع مسیح نے کلیسیا کی بنیاد پطرس کو بنایا اس لیے پطرس بنیاد ہے۔ اور آج دو طرح کے نظریات سے لوگ کنفیوز ہیں اور سمجھتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کی بنیاد پطرس ہے اور کچھ کہتے ہیں یسوع ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کی بنیاد در حقیقت کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، یسوع یا پطرس؟ تو جس کو بنیاد بناتے ہیں، جس کلام کے حصے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد بنا کر اس کے نظریات چینج کر کے ہم لوگوں کو کنفیوز کر سکے، تو آئیے اس حصے کو پڑھتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کریں گے بات کیا ہو رہی تھی اور کون بنیاد ہے، ہمیں کس بات پر آمادہ رہنے کی ضرورت ہے، کس بات پر ہمیں مکمل اعتقاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، کلام حق میں یوں لکھا ہے، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ لوگ اس بات کو ہی سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پطرس کو یہ کہا کہ تو پتھر ہے، تو پطرس ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا کی بنیاد بناؤں گا۔ در حقیقت بات کیا ہو رہی تھی؟ ہو کیا رہا تھا؟ کیا یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی تھی یا پطرس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا بات کس کے بارے میں ہو رہی تھی تو ہم ٹھیک مفہوم کو نہیں سمجھ سکے۔ تو اگر اوپر والی آیات کو میرے بھائیوں ہم سمجھیں تو اس میں یوں مرقوم ہے، 13ویں آیت سے دیکھیں پورا پیراگراف تو ہمیں پتہ چلے گا، جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض ایلیا، بعض یرمیا، بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ در حقیقت بات یہ ہو رہی تھی، یسوع مسیح شاگردوں سے پوچھ رہے تھے، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے ویوز بیان کیے، اور کسی نے تو کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا خداوند لوگ تجھے سمجھتے ہیں، اور کسی نے کہا تجھے ایلیا سمجھتے ہیں، اور کسی نے کہا یرمیا، اور کچھ نے کہا نبیوں میں سے کوئی، تجھے جانتے ہیں کہ تم نبیوں میں سے کوئی ہے۔ اور اس نے پھر کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو ان میں سے پطرس ایک دم جواب دینے لگا اور کہنے لگا، تو زندہ خدا کا بیٹا
मसीह है। और यीशु मसीह ने उससे कहा, मुबारक है तू शमाउन बर यूना, क्योंकि तुझ पर मेरे बाप ने जो आसमान पर है ये बात जाहिर कर दी है कि मैं मसीह हूँ, मैं खुदा हूँ। तो मैं भी तुझ पर एक बात जाहिर करता हूँ, मैं ये भेद की बात तुझ पर खोलता हूँ। मैं इस पत्थर पर, यानी यीशु अपनी बात कर रहे थे, इस पत्थर पर इस कलीसिया की बुनियाद डालूंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। अब क्योंकि ये समझने की बात है, लोग इसे समझते हैं, जब यीशु बात कर रहे थे तो शायद यीशु ने इशारा पतरस की तरफ किया था, क्योंकि पतरस के नाम के मायने पतरस यानी चट्टान में से कटा हुआ पत्थर है। तो यीशु ने कहा कि यीशु पतरस से मुखातिब थे और यीशु मसीह पतरस से कह रहे थे, क्योंकि तू पतरस है, तू पत्थर है, इसलिए मैं इस कलीसिया की बुनियाद तुझ पर ये नहीं लिखा है क्योंकि तू पतरस है और तू भी पत्थर है। मैं तुझे कहता हूं, मैं तुझ पर जाहिर करता हूं कि जिस कलीसिया को मैं बनाने वाला हूं उसकी बुनियाद मैं इस पत्थर पर यानी चट्टान पर बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। लोग आज इस बात को मेरे अजीजों समझने से कासिर हैं। लोग समझते हैं कलीसिया की बुनियाद पतरस है और वो बुनियादी पत्थर पतरस है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, हमारी बुनियाद किसी इंसान पर नहीं है, कलीसिया की बुनियाद किसी भी आम बशर पर नहीं, बल्कि हमारे मुनज्जी यीशु मसीह पर है। और अगरचे हम इसे कलाम की रूह से बेहतरीन तौर पर स्टडी करना चाहें और इसे समझना चाहें तो मेरे अजीजों हमें फिर एक बार कलाम ही का सहारा लेना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। तो आइए मेरे साथ मिलकर देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर आगे हम पढ़ेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि इसके बारे में मुकद्दस पौलुस बयान कर रहे हैं और वो क्या ख्याल बयान करते हैं कि कौन बुनियाद है। हम कंफ्यूज न रहें। याद रखिएगा, अगर मेरी और आपकी बुनियाद अगर कोई आम शख्स है तो हम दुनिया में से सबसे ज्यादा बदनसीब रहेंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुदा का बेटा यीशु मसीह बना है। कलीसिया की बुनियाद यीशु है जो कब्र में नहीं रहा, जिसकी कब्र दुनिया में खाली है और वो जिंदा होकर आसमानों पर चला गया। इसीलिए कलीसिया पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब ना आएंगे। इसीलिए कलीसिया की बुनियाद को वो रोकने वाले नहीं ठहरेंगे, उन्हें दबाने वाले नहीं ठहरेंगे। कलीसिया आलम अरवाह में छोड़ी ना जाएगी। ये बुनियाद है और अगर बुनियाद ही कैद है तो फिर कलीसिया कैसे आजाद हो सकती है। अगर कोई शख्स कहे कि मेरी बुनियाद पतरस है तो पतरस फिर आज भी कब्र के नीचे मौजूद है और जिस मकान की जिस बिल्डिंग की न्यू कैद है वो बिल्डिंग कैसे आजाद हो सकती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इस पर रोशनी डाली है मुकद्दस पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों के पहले खत में 3 बाब की 10वीं और 11वीं आयत। उसमें यूं मरकूम है, मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दना मुमार की तरह न्यू रखी और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस न्यू के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस न्यू पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उसका काम बताएगा और वो आग खुद हर एक के काम को आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। याद रखिए पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने दनामुमार की तरह एक न्यू रखी है और वो न्यू कोई दूसरी मैंने नहीं रखी बल्कि वही न्यू है जो पड़ी हुई थी, यानी मसीह यीशु मसीह कलीसिया की बुनियाद है। यीशु मसीह कलीसिया की न्यू है जिस पर कलीसिया की इमारत यानी एक हैकल बनी है, यानी एक मकदस खड़ा हुआ है। कलीसिया को खुदा ने मकदस कहा है। और जानते हैं वो
मुकद्दसीनों ही के लिए ये शर्फ बख्शा गया है और उन्हीं से कहा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो। मेरे अजीजों, क्योंकि बुनियाद मसीह है, हमारी बुनियाद मसीह है, और जब मसीह बुनियाद है तो फिर यकीनन कलीसिया किसी भी तरह खसारे में नहीं है, कलीसिया किसी भी तरह अरवा में छोड़ी नहीं जाएगी। और वो कलीसिया जो ये कहती है कि मेरी बुनियाद एक आम शख्स, मेरा मतलब मुकद्दस पतरस आम शख्स नहीं है। मुकद्दस पतरस खुदा के बेहतरीन रसूल थे, मुकद्दस पतरस खुदा के मुकद्दस चुने हुए बंदे और ममसू थे। लेकिन याद रखिए, मसीह फर्क है। हमारी बुनियाद की बात हो रही है, ग्राफ की इंसानों और खुदा के बेटे यीशु मसीह के ग्राफ की बात नहीं हो रही। बात यह है कि बुनियाद कौन है। मेरा मतलब हरगिज ये नहीं मुकद्दस पतरस को ये जानना कि वो बिल्कुल आम शख्स नहीं, मैं समझता हूं खुदा के चुने हुए थे वो। लेकिन बुनियाद की बात करें तो बुनियाद यीशु मसीह है, बुनियाद कोई शख्स नहीं है और कोई शख्स नहीं है। वाज़िया करता चलना चाहता हूं, ये वाज़िया करना चाहता हूं, हमारी बुनियाद यीशु मसीह है। और अगर कोई ये कहे कि पाती साहब जरा उस हवाले को गौर से पढ़ लेते, क्योंकि वो वहां पर लिखा है कि मैं इस पत्थर पर, तो यीशु मसीह चट्टान है, यीशु मसीह कटा हुआ पत्थर नहीं है। तो मेरे अजीजों, अगर हम नीचे खड़े होकर किसी चट्टान को देखें तो वो हमारे लिए चट्टान है, और अगर खुदा ऊपर से निगाह करे तो वो पत्थर की मानिंद है। तो समझिए खुदा का कलाम है ये। जरा उस चट्टान को देखते हैं कि क्या जिसे वाकई ही खुदा ने जाहिर किया, वो चट्टान, वो पत्थर जिस पर हमारी बुनियाद है, खुदा के कलाम ही में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई, जिस घर की बुनियाद चट्टान पर रखी गई। आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे, उसे तमाचे लगेंगे, लेकिन वो घर गिराया ना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर है। और कौन सी चट्टान पर है? आइए जरा आज उस चट्टान को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। जी हाँ मेरे अजीजों, जो बनी इस्राएल जिस चट्टान में से पानी पीते थे, वो चट्टान मसीह था। जो बुनियाद कलीसिया की बना, वो मसीह था। आज हमें कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। ईमानदार तो कम से कम कंफ्यूज नहीं है, वो तो बड़ी क्लियरली इस बात को समझते हैं कि हमारी बुनियाद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जो मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से जी उठा, और उसी के जी उठने से कलीसिया ने नई जिंदगी पाई, नया जीवन पाया। और आज भी कलीसिया उस बुनियाद पर खड़ी है, और कलीसिया आसमानी बादशाही का हिस्सा है, जमीन पर नहीं छोड़ी जाएगी। याद रखिए, क्योंकि कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, कलाम को बेहतर तौर पर समझना, बेहतर पढ़ना और बेहतर नताइज के साथ इसे समझ लेना, यही जिंदगी का वारिस है। यीशु मसीह के नाम की वसीले, आमीन।